ممبر نور پر باوقار علماء کرام، مداحان عظام، طالبان علوم نبویہ، معزز و محترم سامعین کرام، پردہ خواتین اسلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الفاتحۃ علی روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے نر شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر ہمیشہ عشق رسول میں ہی ہوا کرتا ہے، جی بے شک۔ اور آپ اگر عاشق رسول ہیں تو جب بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ آج ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر ایک تو محفل پاک جسے جنت کی کیاری کہی گئی ہے، جی دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ کی نظر کرم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ایک بزرگ کی نظر کرم میں ہیں تو یقین جانیں اگر بزرگ کا یہاں کوئی بھی علاقہ کے تعلق سے کچھ بھی معاملہ حضور کیا ہے مدار شاہ بابا کا تھوڑا سا بھی اگر تعلق ہے تو ان کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے ہیں سب اس تعلق سے مستفیض ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ بے شک۔ ہم لوگوں کی نسبت بزرگان دین کی بارگاہ سے ہے، جی الحمدللہ۔ اور بزرگان دین سے جو چیز ملوث ہو جائے ان سے بھی ہماری نسبت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں پر حضور مزار شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے، یہی ہے نا چلہ گاہ، تو یقین جانے اس چلہ گاہ میں بھی حضرت کی نظر کرم ہے۔ اسی نظر کرم کے تحت آپ یقین رکھیں کہ حضرت کی بارگاہ جہاں بھی ہے اس بارگاہ سے ہمیں فیض مل رہا ہے۔ اگر فیض نہیں ملتا تو ان کی بارگاہ سے یہاں سے توسل لے کے ہم پروگرام نہیں کر سکتے۔ جی ضرور اس بارگاہ سے ہمیں فیض ہے، جی، اور فیض ہی کا کرم ہے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں۔ سنیوں کے لیے ہلکی سی نسبت ہی کافی ہے۔ ابھی
नकीब साहब बड़े अच्छी निकाबत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके निकाबत में 4 चांद लगा दे आमीन और हक बोलने और हक सुनने और उलमा की हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी कह रहे थे ना, जब हमारे अब्दुल रहीम साहब नाज शरीफ पढ़े तो इन्होंने एक दुआ दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इनकी नात सुनने के बाद ऐसा लगा कि क़यामत की सुबह तक नात पढ़ी जाएगी। जी उन्होंने कहा ना, कहे ना, जी आप भी सुने ना, ये तो ये कह रहे हैं क़यामत की सुबह तक, मगर हुजूर सरकार आला हजरत फरमाते हैं क़यामत में भी मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह। क़यामत में भी मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाएगी। वाह। और हर दिन हम लोग ये पढ़ते हैं ना, सुबह में सलाम पढ़ते हैं, जी हर मिलाद में सलाम पढ़ते हैं। काश महशर के जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। इसका माने समझ रहे हैं कि काश महशर में जब उनकी आमद हो, जब हुजूर की आमद होगी तो उस वक्त भेजे उनकी शौकत पे लाखों सलाम। ये सलाम क्या है? हुजूर की नात तो है। जी हुजूर की बारगाह में जब हम सलाम पढ़ते हैं, नाते नबी तो है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सब हुजूर की तारीफ है। जी और तारीफ का नाम ही नात है। जी और नाते नबी यहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं, जी मगर शर्त इतनी है कि जो मोमिन होगा वही नात पढ़ेगा, जो आशिक़े रसूल होगा वही नात पढ़ेगा, सुभान अल्लाह। जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा वही नात पढ़ेगा। अब आप इस महफिल पाक में बैठे हैं, हजरत अभी शेर पढ़ रहे थे कि नात हम भी पढ़ें, नात हम भी पढ़ें, नात हम भी पढ़ें। ये इनका सिर्फ कहना नहीं है, हर आशिक़े रसूल यही कहे कि नात हम भी पढ़ें। इन्होंने एक जुमला कहा कि आज पढ़ें, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों की हाल ये है कि वो हर वक्त कहते हैं कि परवरदिगार तू ऐसा करम अता फरमा कि हर सेकंड मुस्तफ़ा की नात पढ़े, हर मिनट में मुस्तफ़ा की नात पढ़े। मगर आप हजरात, मैं जब से आकर बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ, जनाब अब्दुल रहीम साहब ने नात पढ़ा, हमारे कारी साहब किबला कारी तारिक साहब नात पढ़ रहे हैं, और हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन मिसबाही साहब की सदारत में ये जलसा अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। मगर उसके बावजूद आप हजरात खामोशी का माहौल बनाए बैठे हैं। क्या आपको नात नहीं पढ़नी है? आप बताएं, आपको नात नहीं पढ़नी है? जहां भी जलसे होते हैं, जलसे में सिर्फ नायब शायर ही नात पढ़ेंगे, नकीब ही नात पढ़ेंगे, खतीब ही हुजूर की तारीफ करेंगे, हदीस कुरान पढ़ेंगे। क्या पब्लिक को नात पढ़ने की इजाजत नहीं है कि नहीं? बताओ। इसी महफिल में भी आपको नात पढ़ने की इजाजत है। नात पढ़ने की कब कब इजाजत है? आप सुभान अल्लाह कहें, यह हम्द है, मगर नात पढ़ना कब है? आप तो 50 बार जलसे सुनते हैं, कटक के सरजमी पे न जाने कब कब जलसे होते हैं। आए दिन तो जलसे हैं, आए दिन नाते नबी आप सुनते हैं, मगर महफिल में आने के बाद आपकी जबान खामोश क्यों हो जाती है? नाते नबी आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? अभी हजरत जो कह रहे थे मदीना शरीफ की तारीफ कर रहे थे, तारीफ के बाद वो कह रहे थे कि कभी मदीना देखूं, कभी नात पढ़ूं, कभी ऐसा करूं, मगर ये सब आशिकों की पहचान है। मगर हर मुसलमान कहता है कि हम आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े रसूल हैं, मगर नात क्यों नहीं पढ़ते हो? इस महफिल पाक में आने के बाद 2 घंटा 4 घंटा बैठने के बाद हमारा माहौल ऐसा हो जाता है कि हम नाते नबी पढ़ें क्या? हम टटोलते हैं कि कौन शायर क्या पढ़ता है, कौन कितना अच्छा खींचता है, किसका शेर अच्छा है, किसके कलाम अच्छे हैं। हमको माना नहीं पता, हमको ये कुछ नहीं पता, उसके बाद भी आप नात नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ स्टेज का मेयार नहीं बदलना है, पब्लिक का भी मेयार बदलना है।
اسٹیج کی حالت نہیں بدلنی ہے، پبلک کی بھی حالت بدلنی ہے۔ نعت نبی آپ بھی پڑھیں گے، جب شاعر اٹھے آپ سے کہے درود پاک پڑھو وہ نعت ہے، خطیب اٹھے آپ سے کہے درود پاک پڑھو وہ نعت ہے۔ درود پاک پڑھنا یہ نعت نبی ہے، درود پاک پڑھنا مصطفیٰ کی تعریف ہے، درود پاک پڑھنا مصطفیٰ کے حمد و ثنا ہے۔ مگر آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ نقیب ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، جو بھی ہو، جب آپ سے کہے درود پڑھو تو یقین جانو آپ درود پڑھ لیا کرو۔ یہ درود پاک آپ یہاں کٹک کی سرزمین پہ پڑھیں گے، مگر ابھی جو یہ تعریف کر رہے تھے کہ مدینے والے آقا کی بارگاہ کی تعریف کر رہے تھے، اس بارگاہ کی حاضری آپ کریں یا نہ کریں، آپ جیسے ہی آپ کی زبان سے درود پاک کی صدا نکلے گا تو وہ صدا بارگاہ مصطفیٰ سے ٹکرا جائے گی، وہ صدا حضور کی بارگاہ سے لگے ہوگی۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے، کوئی عاشق رسول اگر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پیش کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں علاقے سے میں آیا ہوں، فلاں جگہ میں فلاں صاحب نے، فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے، آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں مگر مدینے میں آپ کے باپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں مگر مدینے میں آپ کے والد کا نام لیا جا رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں مگر مدینے میں آپ کے مرحوم بابا جان کا نام لیا جا رہا ہے جو قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہاں آپ درود پڑھیں گے، قسم خدا کی ان کی قبر میں مدینے والے آقا کی بارگاہ سے رحمتیں آئے گی، اور وہ رحمتیں کس کی وجہ سے ہے؟ کسی اور کی وجہ سے نہیں، ایک دیوانہ عاشق رسول کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ایک دیوانہ عاشق رسول کی وجہ سے ہے۔ یقین جانو درود پاک میں وہ معاملہ ہے، درود پاک ہمیشہ عاشقوں کو پڑھنا چاہیے، نہ جانے کب کب درود پڑھا گیا ہے، کبھی کسی پریشانی میں ہو درود پڑھو، کبھی کسی حالت میں ہو درود پڑھو۔ آپ کو پتا ہے ابھی ایک صاحب میرے روم میں تھے، ہمارے ساتھی، وہ مولانا یہ تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا میں مدینہ گیا تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک عاشق رسول مدینہ پہنچا، مکہ پہنچا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مگر اس سے قبل ذرا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تقریر ابھی ذرا تیزی میں کرنا چاہوں گا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ بڑی تفصیل میں جاؤں، مگر ہمارے یہاں کرم فرما علماء کرام کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں مدینہ گیا تھا، اللہ کبھی موقع وہ یاد دلائے کہ ہم بھی مدینہ جائیں، بولو آمین۔ آپ ہمیشہ مدینہ جایا کریں، جب جب موقع ملے مدینہ جایا کریں۔ یاد رکھنا دولت کب کام آئے گی؟ اللہ نے دولت دی ہے تو رسول کی بارگاہ دیکھ لی جائے، اللہ نے دولت دی ہے تو نبی کی بارگاہ کو دیکھ لیا جائے۔ قسم خدا کی جب حجاج مدینہ جاتے ہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حاجی صاحب مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف جانے کے بعد مدینے سے واپس آ رہے تھے، جدہ میں جب انہیں فلائٹ پکڑنا تھا، اسی جدہ میں فلائٹ پکڑنے کے لیے جب واپس آئے، وہاں ایک بکسا تھا ان کے ساتھ میں، اسی بکسا کے اندر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ لوگوں نے کہا حاجی صاحب لگتا ہے آپ اپنے اپنے بکسے میں زمزم شریف رکھا ہوگا، اس سے بوتل کا ٹپا کھل گیا ہوگا، ذرا دیکھ تو لو صحیح۔ حاجی صاحب نے کہا نہیں میں زمزم شریف ڈبے میں نہیں رکھا ہوں، یعنی میں پیٹی میں اپنے بکسے میں نہیں رکھا ہوں، زمزم تو الگ ڈبے میں ہے، نہ جانے اس سے کیوں پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے ہی وہ بکسا کھولا گیا، بکسا کھولنے کے بعد کیا دیکھا گیا کہ ایک چمکی ہے، اسی چمکی کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ چمکی کو جیسے ہی دیکھا گیا اسی چمکی میں مدینہ شریف کی مٹی شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم صاحب وہی تھے، عالم صاحب نے دیکھا کہ اسی مٹی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم صاحب نے کہا حاجی صاحب آپ مدینے سے واپس آئے، مدینے سے واپس آنے کے بعد آپ کو جیسے ہی مدینے کی حاضری نصیب ہوئی، آپ کا دل یہ کہہ رہا تھا، آپ کی بیتابی یہ کہہ رہی تھی، آپ کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی، آپ کی زبان یہ کہہ رہی تھی، آپ کے سانس کے ذرے ذرے یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کبھی میں مدینے سے جدا نہ ہوں، یا حبیب اللہ میری آنکھیں مدینے سے دور نہ ہو، یا رسول اللہ میری زبان مدینے سے دور نہ ہو، یا حبیب اللہ میرا قدم مدینے سے دور نہ ہو۔ مگر عالم صاحب کہہ رہے ہیں حاجی صاحب آپ نے مدینے میں قدم رکھنے کے
से हमेशा यही तमन्ना करता हूँ, या रसूल अल्लाह उसी मदीने में मुझे मौत आ जाए, या रसूल अल्लाह उसी मदीने में मेरा ठिकाना बन जाए, या रसूल अल्लाह उसी मदीने में मेरा रहना सहना हो जाए। मगर अब मैं जा रहा हूँ, वीजा मेरा खत्म है, अब मैं जा रहा हूँ, टाइम मेरा खत्म है। मौलाना साहब ने कहा जैसे आपकी तमन्ना है वैसे ही मदीने के जर्रे जर्रे की तमन्ना है, मदीने के कतरे कतरे की तमन्ना है, मदीने के हर जर्रे की तमन्ना है, मदीने की मिट्टी मिट्टी की तमन्ना है, मदीने की हवा हवा की तमन्ना है, मदीने की आग की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह कभी आपके दरो दीवार से हमें जुदाई की ना मिलने पाए। या हबीब अल्लाह हम रहे तो यही रहे, हम मरे तो यही मरे, हम बसे तो यही बसे। वो मौलाना ने फरमाया हाजी साहब आप जब मदीने से वापस आ रहे थे तो ये मिट्टी नहीं जाना चाहती थी, आप लेके इन्हें मदीने से जुदा कर रहे हैं, इसीलिए मदीने की मिट्टी आज आका के जुदाई की तरफ में रोती नजर आ रही है। आज मदीने की जुदाई में रोती नजर आ रही है। पता क्या चला, जब एक मिट्टी को जुदाई बर्दाश्त नहीं है, आशिकों को जुदाई कब बर्दाश्त हो, आशिकों को वहां से जुदाई कब मिल जाए। अल्लाह अकबर। आप ये चाहते हैं इसी तैयार में बैठ के मदीने की हाजिरी दे सकते हैं, इसी तैयार में बैठ के मदीने में आपकी आवाजें वहां गूंज सकती है। अल्लाह अकबर। अभी मैं कह रहा था कि वो हाजी साहब जैसे ही मदीना पहुंचे, आपको पता है उलमाए किराम से आप पूछेंगे तवाफ करने की दुआ अलग है, झूमने की दुआ अलग है, इस्तिलाम की दुआ अलग है, और जैसे ही सफा और मरवा में जाए वहां की दुआ अलग है, जमजम शरीफ पिए वहां की दुआ अलग है, हर जगह की दुआ अलग है, हर मकाम की दुआ अलग है, हर लहजे की दुआ अलग है, हर इलाके की दुआ अलग है। मगर जैसे ही हाजी साहब वहां पहुंचे वो तवाफ भी कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम भी कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, और हजरत अस्वद का बोसा भी दे रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, सफा और मरवा के पहाड़ी पे भी जा रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा अमा हाजी साहब ये क्या मामला है, दुरूद पढ़ने का तो अलग मकाम है, तवाफ करो तो अलग दुआ पढ़ो, हजरत अस्वद को चूमो तो अलग दुआ पढ़ो, सफा और मरवा पर जाओ तो अलग दुआ पढ़ो। हाजी साहब ये क्या मामला है। हाजी साहब ने कहा आपको पता नहीं, मैं अभी हज को आ रहा था, मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम भी हज में थे। जैसे ही मैं आ रहा था रास्ते में सफर कर रहा था, एक भयानक जंगल से हमारा गुजर हुआ। अचानक उसी जंगल के बीच में मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होनी थी, उसी तबीयत खराब के बिना पर मेरे वालिद साहब की मौत आ गई। मौत आ नहीं थी, अचानक मेरे वालिद साहब का चेहरा बिगड़ा, चेहरा एक खंजर नुमा हुआ, या गधे की शक्ल चेहरा हो गया। मैं परेशान हो गया, या अल्लाह ऐसे आलम में कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा रखवाला बनेगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा। ये भी मैं बयाबन जंगल में हूँ, ना कोई सहारा है, ना कोई दोस्त है, ना कोई इलाके का आदमी है। ऐसे आलम में वो बेचारा इधर से उधर घूम रहे हैं, परेशानी के आलम में है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो जनाबे वाला कह रहे हैं या सुनो सुनो, अभी मैं उसी जंगल में था कि अचानक मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। मैं क्या देख रहा हूँ कि कोई आने वाला आया है, वो आने वाला आकर अपना चेहरा मेरे वालिद साहब के चेहरे पर, अपना हाथ मेरे वालिद साहब के चेहरे पर फेर दिया। अचानक वो चेहरा जो खंजर नुमा हुआ था, जो जानवर की शक्ल बन चुका था, वो चेहरा नूरानी हो गया है। वो नूरानी होने के बाद वो जनाबे वाला जा रहे थे, मैंने उनके दामन को पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने कहा आप कौन हैं जो इस बयाबन जंगल में मुझ पर करम करने वाले, मेरे वालिद साहब के चेहरे में नूर लाने वाले कौन है, जरा बताएं तो सही। वैसे ही वो पलटे अपना चेहरा दिखाए और फरमाने लगे कोई और नहीं, मैं वही हूँ जिसे दुनिया दो आलम का ताजदार कहा करती है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाशिफाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मैं वही हूँ जिसे दुनिया सरकार कहा करती है। आशिकों जरा सोचो तो सही, अगर दुरूद पढ़ोगे मौत में मुस्तफा काम आएंगे, अगर दुरूद पढ़ोगे आलमे नज़ामे मुस्तफा काम आएंगे, अगर दुरूद पढ़ोगे यकीन जानो यहाँ दुरूद पढ़ोगे और दुरूद पढ़ते पढ़ते अगर मौत आ गई तो कब्र में मुस्तफा आएंगे, कब्र
में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलब रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलब रसूलुल्लाह की। मगर इस्लाम का कानून है मोमिन होके जिंदगी गुजारो, मोमिन होके जिंदगी गुजारो। मोमिन कौन बनेगा? क्या ऐसे ही चुप बैठने वाला मोमिन नहीं बनेगा। आशिक़े रसूल कौन बनेगा? आपको पता है अल्लाह का बेपनाह एहसान अजीम है, उसका लाख लाख शुक्र है, उसने हमें मुसलमान बनाया, सुभान अल्लाह, मुसलमान बनाया, आशिक़े रसूल बनाया। आपको पता है एक मुसलमान फख्र से कह सकता है जहां भी जाए, जिस जगह जाए, हर लहजे में, हर आन में, हर वक्त में, हर गली में फख्र से कहता है मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है। कहेगा कौन? जो आशिक़े रसूल होगा। कहेगा कौन? जो इस्लाम का वफादार होगा। वही इस्लाम जो हमें जीने का तरीका बताए, वही इस्लाम जो हमें मरने का तरीका बताए, वही इस्लाम हम चलेंगे कैसे वो बताएगा इस्लाम, हम उठेंगे कैसे वो बताएगा इस्लाम, हमारा उठना बैठना इस्लाम तरीका दे, हमारा सोना कैसा हो वो तरीका इस्लाम का है, हमारे खाना कैसा हो वो तरीका इस्लाम का है, हमारा पीना कैसा हो वो तरीका इस्लाम का है, हमारा जागना कैसा हो वो तरीका इस्लाम का है, हमारी तिजारत कैसी हो वो तरीका इस्लाम का है, हम किसी से अगर दोस्ती करें वो तरीका इस्लाम का है, हम किसी से दुश्मनी करें वो तरीका इस्लाम का है, हम किसी से मुसाफा करें वो तरीका इस्लाम का है, हम का सलाम किसे करें वो तरीका इस्लाम का है, हम किसे शादी करें वो तरीका इस्लाम का है, हम दहेज के मामला में क्या करें वो तरीका इस्लाम का है, हम दुनिया के हुकूक कैसे अदा करें वो तरीका इस्लाम का है, अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करें वो तरीका इस्लाम का है, हम पढ़ेंगे नमाज कैसे वो तरीका इस्लाम का है, हम रोजा रखेंगे कैसे वो तरीका इस्लाम का है, हम नमाज पढ़ेंगे कैसे वो तरीका इस्लाम का है, हम हज करेंगे कैसे वो तरीका इस्लाम का है, हम ज़कात देंगे कैसे वो तरीका इस्लाम का है, हम सदका करेंगे कैसे वो तरीका इस्लाम का है। ये इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, ये पाकीज़ा मजहब हमारे हर आन में हमारी हिफाजत करता है, हमारे हर लहजे में हिफाजत करता है। अगर इस्लाम से फिर जाओगे यकीन जानो कोई काम नहीं आएगा। याद रखना यौमा इज़िन यज़्दुरुन्नास अश्तातन लियुरा अमालहुम फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत के दिन हर आदमी को अपने अमाल के बारे में दिखाया जाएगा। कल क़यामत के दिन आदमी अपने अमाल के बारे में देखेगा। कोई छोटी सी नेकी करेगा वो भी देखेगा, कोई छोटा सा गुनाह करेगा वो भी देखेगा। कल क़यामत के दिन हर एक का मामला होगा। यहाँ तक कि आपको बता दूं हदीस पाक में बात आती है क़यामत की महफिल होगी, उसी महफिल आलम में सबके नामाए अमल को तौला जाएगा। उसी नामाए अमल का जब मौका आएगा, अभी नकीब साहब कह रहे थे कुल सराज में मुस्तफ़ा आप तशरीफ ले आए, मगर याद रखना आशिकों तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा तोहफा है, तुम्हारे लिए अनमोल नेमत है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज मुक़द्दस में जा रहे थे उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के मकी हजरत जिब्रील अमीन जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील वहीं रुक जाते हैं, एक पर के आगे बराबर भी नहीं जा सकते हैं। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मगर अपने में हुजूर जा रहे हैं। हजरत जिब्रील ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश एक है, मेरी तमन्ना एक है, मेरी अरीज़ा एक है। या रसूल अल्लाह कल क़यामत में जब नामे आमाल तौला जाए, पुल सिरात का पुल लग जाए, उस वक्त या रसूल अल्लाह जब आपके गुनहगार उम्मती पुल सिरात से गुजरना चाहे, मुस्तफा आप मुझे इजाजत दे दे उसी पुल सिरात में मैं अपना पैर को बिछाता जाऊं। ऐसे मुरझा के नहीं यार, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत मसलके आला हज़रत पुलसरात में हजरत जिब्रील पर बिछाएंगे। अब मैं आपको बता दूं जिब्रील पर बिछाने के बाद पुलसरात से हम गुजरेंगे नहीं बल्कि हमें गुजारा जाएगा। सुभान अल्लाह, हमें गुजारा जाएगा। हम गुजरेंगे जो उन्हें तकलीफ होगी, मगर आशिक़े रसूल गुजरेंगे नहीं, गुजारा जाएगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं पुल से उतार राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो, पर को खबर ना हो।
हम तो पुलसराज से गुजारे जाएंगे, हमें तकलीफ क्या होगी, मगर शर्त यह है कि दुनिया हमारी सही हो, दुनिया हमारी ठीक हो जाए। आप हमेशा नमाज में दुआएं करें, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, परवरदिगार हमें दुनिया भी अच्छा अता फरमा, आखिरत भी अच्छा अता फरमा। अब कयामत के दिन नाम है आमाल तौला जाएगा, वो हदीस जरा सुन ली जाए, नाम है आमाल तौला जाएगा, उसी नाम है आमाल में एक बंदे की एक नेकी कमी हो जाएगी, एक नेकी की कमी होगी। आज हम जनाबे वाला कितने ऐसे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कितने ऐसे मेरे चचा हैं, अजान सुनने के बाद भी मोबाइल चालू रखते हैं माशाअल्लाह, अजान सुनते सुनते भी टीवी देखते रहते हैं माशाअल्लाह। अब बताओ एक हीरोइन का नाच तुम्हारे नजदीक अल्लाह के नाम से बड़ा हो गया माशाअल्लाह, हुजूर के नाम से बड़ा हो गया माशाअल्लाह। आपको पता है अगर अजान सुनते वक्त अजान अगर मस्जिद में हो रही है, कोई बात करता है तो उसकी मौत खराब होने का अंदेशा है, ऐसा मामला है। आप अपनी मौत की तैयारी करें, मौत को अच्छा बनाने की रब की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में हमेशा इल्तिजा करें, परवरदिगार हमारी मौत अच्छी हो जाए। इसीलिए जरूरी यही है हर जर्रे जर्रे नेकी जब आपको मौका मिले छोटी मत समझना, नेकी को करते जाओ, नेकी को करते जाओ। आओ मैं हदीस बताता हूँ, कयामत का दिन है, मैदान महशर बपा है। आपको पता है कयामत के अगर भयान आगे सुना दिया जाए, उस कयामत के मामले को अगर आपको बता दिया जाए, आप कसम खुदा की अभी यहीं बैठे बैठे इतने रोओगे कि आपके आंसू के बजाय खून टपकता रहेगा। वो कयामत है। आपको मालूम है हमारे ऊपर सरों के सामने सूरज होगा, वो सूरज अगर आज कितने दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, साइंस भी आज दिमाग नहीं लगा पा रहा है, कितनी दूरी पे है। अगर वही सूरज का कयामत के दिन हमारे सरों के पास हो जाए, हमारा आलम क्या होगा। अब आपको आप बताओ उस वक्त हम किस तरह होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा, पसीने में शराबर होंगे, जिसका जितना गुनाह होगा उसी गुनाह के एतबार से वो पसीने में शराबर होगा। कोई टखनों तक पसीना, कोई घुटनों तक पसीना, कोई कमर तक पसीना, कोई सीने तक पसीना, कोई नाक तक पसीना, यहाँ तक के कोई पसीने में डूब रहा होगा, यहाँ तक के ऐसे पसीने की बदबू होगी, उन बदबू में से अगर एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, पूरे दुनिया वाले बदबू से पूरे हिलाक हो जाएंगे, इतना बदबूदार पसीना होगा। आप जरा सोचो तो सही, हमने कयामत की तैयारी क्या की है, हमने कयामत के बारे में सोचा क्या है, हमने कयामत के बारे में जाना क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस उस हदीस के रावी है। एक आदमी, एक देहात के रहने वाले सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मत साद, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या तुमने कयामत की तैयारी कर ली है। महादत्ता लहा, उन्होंने कहा महादत्ता लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदाकतिन वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। या रसूल अल्लाह मैंने कयामत की कोई तैयारी नहीं की है, हमें अब ज्यादा नमाज पे भरोसा नहीं है, हमें ज्यादा इबादत पे भरोसा नहीं है, हमें ज्यादा ज़कात पे भरोसा नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह हाँ हमने कयामत की तैयारी की है। वो तैयारी ये है मुस्तफा आपकी मोहब्बत हमने तैयारी कर ली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा। हमने कयामत की क्या तैयारी की है, मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सहाबी के रसूल है, हजरत अनस इस हदीस के रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। कोई कहे कि हम नमाज पढ़ो, बार बार नमाज पढ़ो, और आका की मोहब्बत नहीं, ऐसी नमाज मुंह में मार दी जाएगी। अगर रोजा रखो, आका की मोहब्बत नहीं, ऐसे रोजे मुंह में मार दिया जाएगा। हमारा रोजा मिला कहां से, नमाज मिली कहां से, ये सब मुस्तफा की मोहब्बत की बदौलत है। अगर हुजूर की मोहब्बत है, नमाज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है। सुभान अल्लाह, नमाज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है। नमाज तब कबूल होगी जब मुस्तफा की मोहब्बत हो, रोजा तब कबूल है जब मुस्तफा की मोहब्बत हो। अल्लाह अल्लाह, उस सहाबी ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं हुजूर और अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। आज अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जे अगर तेरी मोहब्बत ऐसी है, कल कयामत में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। जिससे मोहब्बत करे
کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ والوں سے ہماری محبت ہے, یہاں تک کہ اسی حدیث کے دوسرے چیپٹر میں لکھا ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش اس دن نہیں ہوا تھا جس دن حدیث رسول سننے کے بعد اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کا بے پناہ احسان ہے, میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, عثمان سے محبت کرتا ہوں, صحابی سے محبت کرتا ہوں, علی سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں عمر و ابو بکر کا نام لیجئے اور یہ فرماتے ہیں اگر ان کے عمل کی طرح میرا عمل نہیں ہے تو کیا ہوا, میری محبت تو ان کے ساتھ ہے, میری عقیدت تو ان کے ساتھ ہے, میرا عشق تو ان کے ساتھ ہے. اب آپ ذرا سوچیں آپ کی محبت کہاں کہاں ہے. ہر ایک عاشق کہے گا ہم صاحب مزار یعنی مدرسہ بابا جہاں بھی ہے ان کی عقیدت سے ہماری محبت ہے, حضرت غریب نواز سے میری محبت ہے, حضرت مجاہد ملت سے میری محبت ہے, غوث اعظم سے میری محبت ہے, اعلیٰ حضرت سے میری محبت ہے, تاج الشریعت سے میری محبت ہے. یہاں تک کہ اسی محبت کو آگے بڑھاتے جاؤ, خلفائے راشدین سے محبت ہے, صحابہ کرام سے محبت ہے, صدیقین سے محبت ہے, صالحین سے محبت ہے, عتبہ سے محبت ہے, صلحاء سے محبت ہے, عدم سے محبت ہے, اولیاء سے محبت ہے, جتنے بزرگان دین ہیں ان بزرگوں سے محبت ہے, اور جو عالم حق ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں ان سے محبت ہے. جب یہ عالم جنت میں جائیں گے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. سبحان اللہ. اب قیامت کی بات سنیں, قیامت میں جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ جاگا. دوسری حدیث بھی سن لے, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ, جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. مگر دوسری حدیث کیا ہے, انسانوں دیکھ کے محبت کرو. المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج ہماری دوستی بڑی ہو گئی ہے, آج ہماری دوستی کا عجب معاملہ ہے. میرے دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ بتاؤ اپنے اپنے اعتبار سے آپ کی دوستی کہاں کہاں ہے. آپ مسجد سے دوستی نہیں کرتے ہیں, آپ قرآن سے دوستی نہیں کرتے ہیں, آپ نمازوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں, علماء سے آپ کی دوستی بس ظاہراً دوستی ہے, بس سلام تک دوستی رہتی ہے. جیسے ہی علماء بازار میں آ جائیں چائے پلانے تک آپ محدود رہتے ہیں, علماء چائے اور سلام تک محدود رکھیں. ایسے علماء کی دوستی ہمیں نہیں چاہیے. وہی علماء کا سچا عاشق وہی ہوگا جو عالم کے پیچھے نماز بھی پڑھے گا, جو عالم کا ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کرے گا, وہی علماء کی دوستی میں سے آتا ہے. یاد رکھنا مسلمان ہو, آپ اپنے اپنے اعتبار سے صحیح دوستی کریں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دوستی ہونے کے باوجود ہم انگریزی شیعہ میں چلتے ہیں, انگریزی طور طریقے پہ چلتے ہیں. ابھی آنے والا ہے دسمبر کا مہینہ, 6 دسمبر میں دیکھ لو ہمارے بھائی بہن کو ایسے ایسے معاملہ کریں گے. 6 دسمبر میں عجب عجب معاملہ کرتے ہیں. میں میری بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اب اپنے اپنے عقیدے کو ذرا دیکھ لیا کرے, اپنا طریقہ دیکھ لیا کرے. یاد رکھنا رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو, یقین جانو کامیابی تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی. میرے دوست ایسے ہیں, ایسے میرے بھائی حضرات ہیں, جو میرے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے لباس کو بھی سدھار لیا کرے. آپ کا لباس بھی بگڑتا جا رہا ہے, آپ کا طریقہ بھی بگڑتا جا رہا ہے. میرے کچھ ایسے بھائی ہیں جو پینٹ پہنتے ہیں, پھٹا پھٹا پینٹ پہنتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ کو پتا ہے مرد کو ناپ کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. جتنے حضرات ہیں آپ ذرا سن لیں, اب اپنے اعتبار سے سن لیں. اگر آپ کا لڑکا 4 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہے, ایسے 4 سال کی عمر کے بعد بچوں کے شرمگاہ کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے, بچوں کو صحیح لباس پہنانے کا حکم ہے. آج تو بڑا بگڑا ہوا ہے, بڑکا بگڑا ہوا ہے, یہاں پر پھٹا پینٹ ہے, یہاں پر پھٹا پینٹ ہے, 12 منڈا پہنتا ہے, چڈی پہن کے نہاتا ہے. ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا یاد رکھنا اگر ناپ سے گھٹنے تک آپ کا چھپا نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ایسا کپڑا پہننا حرام ہے جو کپڑے پہننے کے بعد آپ ننگا نظر آتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے یہاں اگر کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی عورت نہیں ہے, آپ ننگے گھوم رہے ہیں, کہ آپ
आपको यकीन नहीं है कि मेरा रब देख रहा है? आपको यकीन नहीं है मेरा खालिक कायनात देख रहा है? यहाँ तक के हुक्म यही है कि अगर गुसल खाना के अंदर भी नहा रहे वहां भी नंगा ना नहाए, वहां भी सही कपड़ा पहन के नहाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अपने अपने दीन की हिफाजत करो। अब बताओ जरा सही, अगर आप उस तरह कपड़ा पहने हैं, फटा पुराना कपड़ा पहने हैं, यहाँ फटा, जान के पास फटा, बारामुंडा पहने हैं, गलत कपड़ा पहने हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। रास्ते में चल रहे हैं, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट करे मौत आ जाए, कहीं गाड़ी आके टकरा जाए मौत आ जाए, आपकी मौत हो रही है और आपका लिबास सही नहीं है, आपकी मौत आ रही है और आप हरामकारी में डूबे हुए हैं। ऐसे आलम में आपका आलम क्या होगा? कल कयामत में आप किस तरह उठाए जाएंगे? अब जरा सोचे तो सही मेरे दोस्तों, अपने अपने एतबार से अपने लिबास की हिफाजत करो। मेरी मार बहने, आप भी अपने लिबास की हिफाजत करो। औरतों को तो इतना हुक्म है कि वो जब नमाज पढ़े तो वो दुपट्टा डाले, जिस दुपट्टे में अगर बाल का कालापन नजर आए नमाज नहीं होगी। ऐसे दुपट्टा ओढ़ने को नमाज पढ़ना नहीं कहा गया है। जब ऐसा दुपट्टा पहन के नमाज नहीं पढ़ सकती है तो जाली वाला लिबास पहन के बाहर क्यों आती है? जाली वाला लिबास पहन के इधर उधर क्यों घूमती है? ऐसे तो औरतों को घूमना भी मना है, मगर उसके बावजूद भी अगर घूम रही है तो तेरा लिबास तो अच्छा होना चाहिए, तेरे हाथ को ढकना चाहिए, तेरे जिस्म का हर हिस्सा ढकना चाहिए। औरतों को पूरा जिस्म ढकाना है सिवाय चेहरा और हथेली के। वो भी मर्दों अपने शौहर को दिखाने का हुक्म है, गैर महरम के सामने चेहरा भी खोलना उलमा ने मना फरमा दिया है। ऐसे आलम में मैं अपने बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस बाबा की बारगाह से जहां पर तबरुकात है, इस तबरुकात के तवस्सुल से मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अपने लिबास की हिफाजत करो, अपने कपड़े की हिफाजत करो। याद रखना कल कयामत के दिन आपका मामला बड़ा अजब होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब मेराजुल मुक़द्दस में हुजूर तशरीफ ले गए, उस वक्त हुजूर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा, अक्सर औरतों को देखा। अब जरा सोचे तो सही, वो औरतें अक्सर क्यों हैं वहां जहन्नम में? उसकी वजह यह है, बाल खोल के घूमने वाली औरत जहन्नम में पाई गई, तंग लिबास पहनने वाली औरत जहन्नम में पाई गई, नंगा घूमने वाली औरत जहन्नम में पाई गई, आवारा गर्द होने वाली औरत जहन्नम में पाई गई। मगर ये औरतें जहन्नम में है, याद रखना, इनका जहन्नम में जाना आपके लिए रुखसत नहीं है। अगर ये गई है, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बीबी होगी, किसी की बहन होगी, कल क़यामत में कहेगी परवरदिगार मैं घूम रही थी, मेरा भाई टोका नहीं, मैं घूम रही थी, मेरा शौहर टोका नहीं, मैं घूम रही थी, मेरा बाप टोका नहीं, मैं घूम रही थी, मेरा बेटा टोका नहीं। जरूरी यही है, अगर बेटा जानता है अपनी माँ को रोके, अगर भाई जानता है अपनी बहन को रोके, अगर शौहर जानता है अपनी बीवी को रोके, अगर बेटा बाप जानता है अपनी बेटी को रोके, रोकेगा ये कल क़यामत में दोनों जन्नत में जाएंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा का पैगामे मजहबे इस्लाम, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती शमशुद्दीन मुजाहिदी। अल्लाह अल्लाह। और सुनेंगे कि टाइम खत्म हो गया, तकरीर खत्म करें, तकरीर खत्म करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा रहत के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल क़यामत का मामला होगा, एक एक नेकी के बारे में वहां पूछा जाएगा। कुरान फरमा रहा है ना, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। हल्की सी अगर नेकी आप किए हैं कल क़यामत में दिखाया जाएगा, हल्का सा छोटा भी गुनाह आप किए हैं कल क़यामत में दिखाया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं ये हाथ मेरा है? आप क्या समझ रहे हैं ये पैर मेरा है, ये जिस्म मेरा है? नहीं नहीं, ये आपका है, नहीं है, आपका नहीं है। आप तो अमीन है, अमीन आपको अमानत के तौर पे दिया गया है। मालिक तो मेरा खालिक के कायनात है, परवरदिगार हमारा मालिक है, हमारा मालिक है। अल क़यामत में वही परवरदिगार हाथ से पूछेगा बता इसके बारे में, पैर से पूछेगा बता इसके बारे में, आंख से पूछेगा बता इसके बारे में। मेरे नौजवान भाइयों, इधर उधर जाके दूसरी लड़कियों को आंख मारा करते हो, याद रखना कल क़यामत में आंख तेरे खिलाफ में गवाही देगी, तेरे खिलाफ में गवाही देगी। ये ज़बान तेरे खिलाफ में है, ये नाक तेरे खिलाफ में है, ये कान तेरे खिलाफ में
है। हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीरों के पीर के वालिद मोहतरम एक सेब खाने के बाद क्यों उस बाग की तरफ गए? वजह क्या है? हजरत बड़े पीर के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह को पता है कि अगर मैं आज सेब खा लिया, ये ज़बान मेरी गवाह है, ये हाथ मेरा गवाह है, ये पेट मेरा गवाह है, ये जिस्म मेरा गवाह है, कल क़यामत में यही मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए मेरे दोस्तों याद रखना, अपने आज़ा को कम मत समझना। यही आज़ा उलमा फरमाते हैं अगर यही आज़ा से वज़ू करके मस्जिद जाओगे, कल क़यामत के दिन आज़ाए वज़ू चमकता रहेगा और चमकते कहेगा परवरदिगार ये नमाजी था, इसे जन्नत का रास्ता अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अच्छा पैगाम है। ये नमाजी था, इसे जन्नत का रास्ता अता फरमा। एक एक नेकी के बारे में वहां हम समझ में आएगा, एक एक गुनाह के बारे में हमें समझ में आएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैंने कुरान में मुक़द्दस की जिस आयत को अपना मौज़ू बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ऐसे ही डरो जैसे कि डरने का हक है, जैसे डरने का हक है। इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मोमिन हो, कसम खुदा की मुसलमान हो, अपने ईमान की हिफाजत करे। याद रखना, बात आखिरी में बता दूं, जिस हदीस को मैं पढ़ने वाला था उसी हदीस को अब तक वहां तक बात नहीं पहुंची कि लंबी गुफ्तगू हो रही है। वो कयामत में नामाए आमाल तौला जाएगा, वहीं पे बात मैं रोका था। नामाए आमाल तौला जाएगा, एक नेकी की कमी होगी। कितनी? एक नेकी की कमी होगी। आज मेरे दोस्तों भाई आप जरा बताओ, आप अपने अपने एतबार से, अपना बाप अगर चले गए हैं दुनिया से, माँ चली गई है, रिश्तेदार चले गए हैं, तो उनके कब्र में नेकियां हम पहुंचा सकते हैं कि नहीं? ये ईसाले सवाब कहा जाता है, हम पहुंचाते हैं कि नहीं? कुरान पढ़े, अपने हाफिजी से पढ़ाए, अपने इमाम साहब से पढ़ाए, पढ़ाने के बाद दुआ कर दी, परवरदिगार इन सारी चीजों का सवाब हदिया मेरे वालिद साहब तक पहुंचा, उनके कब्र में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमा। ये सारा मामला दुनिया का है। दुनिया में बाप गया बेटा पहुंचा रहा है, बेटा गया दूसरा बेटा पहुंचा रहा है, तीसरा बेटा पहुंचा रहा है, यही तरीका चलता रहेगा, चलता रहेगा। मगर जब सूर फूंक दिया जाएगा, उस वक्त कयामत, कुर्ब कयामत में जब सबको मौत आ जाएगी, अब सवाब कौन पहुंचाएगा? अब तो सवाब का मामला खत्म, अब तो नामाए आमाल का माल सारे पहुंचाने वाला मामला खत्म। अब तो वहां हिसाबो किताब होगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में एक ने की कमी होगी, कहां से लाएगा? मैदान महशर में कौन देगा? कुरान फरमा रहा है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबती व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीहि। कल क़यामत के दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा, इधर उधर सब ये इधर उधर भागेंगे, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। आज दोस्ती करने वालों, तुमने पबजी पे दोस्ती की है, तुमने इनसे पे दोस्ती की है, तुमने गलत मोबाइल पे दोस्ती की है, नाजायज तरीके पे दोस्ती की है, सिनेमा हॉल पे दोस्ती की है, बुराई अड्डे पे दोस्ती की है, शराब नशी में दोस्ती की है, जनाखरी में दोस्ती की है, और इधर उधर आवारागर्दी में दोस्ती की है। यहाँ तक के माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, यहाँ तक के लॉटरी में दोस्ती की जा रही है, जुआ में दोस्ती किए जा रहे हैं, हलाल से बजाय हराम कमाने में दोस्ती की जा रही है, सूदखोरी में दोस्ती की जा रही है। ऐसे आलम में कल क़यामत में कौन किसका काम आएगा? यही दोस्त जो आज तेरे साथ हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, नमाज भी तेरी छूट रही है, तेरे इबादतें भी छूट रही है, कल क़यामत में यही दोस्त कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। अल्लाह अल्लाह। इसी में शायर कहता है, न बेटा बाप का होगा, न बेटी माँ की होगी, वहां तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह, वहां तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह। अमा हुजूर का बनकर तो देखो, मुस्तफा के बनकर तो देखो, हुजूर के होकर तो देखो। याद रखना, अगर यहाँ हो गए, क़यामत में मुस्तफा आपके साथ रहेंगे, हुजूर आपके साथ रहेंगे, आप कहीं भी रहे इंसान में रहेंगे, हुजूर का जलवा वहां पाएंगे, और असर में रहेंगे, हुजूर का जलवा वहां पाएंगे। यहाँ तक के मुस्तफा अपने सर को सजदे में रखेंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि पूरे आंसुओं से जहन्नम बुझाया जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा,
शान मुस्तफा वकार मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचे तो सही कल कयामत का मामला क्या होगा। मेरे दोस्तों नेकी करोगे ना, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नेकी करेंगे। अब जरा सुनो उस वक्त का मामला क्या होगा। कयामत के दिन एक नेकी की कमी होगी। कितनी? एक नेकी। एक नेकी कौन देगा? कौन देगा आपको बताओ। कल कयामत में कोई देगा? एक नेकी देने के लिए कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अभी कुछ साल पहले जब लॉकडाउन का मामला हुआ था, एक एक रुपए के लिए सब परेशान थे। यहाँ एक रुपए के लिए परेशान है, वहां कयामत में एक नेकी कौन देगा। अल्लाह अकबर। मगर आओ रब की रहमत देखो, अल्लाह के करम का जोश देखो। ऐसे आलम में रब का हुक्म होगा, जा पूरी कयामत में एक नेकी लेके आ। अब वो बंदा अल्लाह की बात पे अमल करते हुए वो नाउमीद नहीं होगा, उम्मीदों का साया लेते हुए, उम्मीदों का पूरे भरम को अपने दिल में रखते हुए पूरी कयामत में गर्दिश करता रहेगा, कयामत में घूमता रहेगा। कोई है जो मुझे एक नेकी दे दे, कोई है जो मुझे एक नेकी दे दे, कोई है जो मुझे एक नेकी दे दे। मगर याद रखना मुसलमान हो, कल नेकी तो मिलेगी कयामत में। किसकी नेकी मिलेगी? अगर आपने सही रास्ते पे खर्च किया है तो उसकी नेकी मिलेगी। आपके इलाके में मदरसा भी चलता है, यहाँ मस्जिद भी है, तामीर मस्जिद भी होती है, मदरसा भी वीरान पड़ा हुआ है, कभी उसमें भी आप सदका करें, कभी उसमें भी आप खैरात करें, मदरसे के बच्चों के पीछे एक रुपया खर्च करेंगे। कल कयामत में रब की बारगाह में कहेगा, परवरदिगार इसने मेरी तालीम में एक रुपया दिया है, अल्लाह इसे मेरे साथ जन्नत भेज दे, अल्लाह इसे मेरे साथ जन्नत भेज दे। यहाँ तक के उलमा से पूछे, अगर आप किसी आलिम को वजू करने का पानी देंगे, कल कयामत के दिन आप उनके दामन को पकड़ लेंगे, आलिम साहब मैंने एक लोटा पानी आपको दिया था, आप जन्नत जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चले। कसम खुदा की हदीस पाक में बात आती है, कल कयामत के दिन जिस आलिम को आप वजू का पानी दिए होंगे, जिस नमाजी को वजू का पानी दिए होंगे, वो भी आपको साथ लेकर ही जाएंगे। अब अगर एक लोटा पानी का ये आलम है तो आप अगर पूरे हौज बना दो तो आलम क्या होगा, मदरसे में पूरा हौज खोल दो तो आलम क्या होगा, अगर पूरे बच्चों को खाना एक दिन खिलाए तो आलम क्या होगा। मुसलमानों, नेकी जब जब करने का मौका मिले छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जब मौका मिले नेकियां करते जाओ। याद रखना, अल्लाह ताला उसी को अपनी बारगाह में सदका कराने का मौका देता है जिसे अल्लाह चाह लेता है। सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह चाह लेता है। दौलतें तो दुनिया में बहुत है, मगर कारून के जैसा दौलत नहीं चाहिए, हजरत उस्मान गनी के जैसा दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नारा है, नारा है, बहुत अच्छा पैगाम। हजरत उस्मान गनी के जैसा दौलत। सुभान अल्लाह। अब आओ कयामत के मामला में वो बंदा एक नेकी के लिए घूमता रहेगा, एक नेकी के लिए घूमेगा। पूरे मैदान महशर में घूमने के बाद उसे क्या मिला? एक दोस्त उसकी मुलाकात होगी। वही दोस्त कहेगा, क्या है तुम क्यों परेशान हो, क्यों हैरान हो? वो कहेगा, मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरे नामाए अमल में एक नेकी की कमी है। अब वो उससे पूछेगा, तू क्यों परेशान है? वो कहेगा, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे पास सिर्फ एक नेकी है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेकी और कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों आपस में बातें करने के बाद अब ये कहेगा बंदा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है एक नेकी कहीं से ला, उसी एक नेकी के बदले में अगर तू नेकी लाएगा तेरे नामाए अमाल का मामला बराबर हो जाएगा, यानी तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। चल एक नेकी लेके आ। अब ये जैसे ही कहेगा, वो कहेगा, अगर एक नेकी तुझे चाहिए, मेरे पास तो नेकी ही नहीं है, एक काम ऐसा कर, तू मेरी नेकी लेके चला जा, मेरी नेकी लेके चला जा। अल्लाह अल्लाह। ये अपनी नेकी उसे दे देगा। वो दौड़े दौड़े रब की बारगाह में जाएगा। जाने के बाद अर्ज करने लगेगा, परवरदिगार मैं एक नेकी लाया हूँ, एक नेकी लाया हूँ, एक नेकी लाया हूँ। अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, इस मैदान महशर में नफसी नफसी के आलम में कौन मुझे नेकी दे दिया है? वो अर्ज करेगा, मौला मेरा एक दोस्त है, सिर्फ एक नेकी लेके घूम रहा था, वो एक नेकी अता किया है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही रब सुनेगा। रब सुनने के बाद रब की रहमतें जोश में आएगी। परवरदिगार हुक्म फरमाएगा कि जब मैदान महशर में नफसी नफसी के आलम में एक बंदा हो के बंदे पे मेहरबान हो सकता है, तो मैं रब क्यों नहीं मेहरबान हो? तू भी जन्नत में जा, तेरा साथी भी जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी जन्नत में जा, तेरा
साथी भी जन्नत में जा। अब जरा आप सोचे तो सही, अल्लाह की बारगाह में एक नेकी की कितनी अहमियत है। सुभान अल्लाह, एक नेकी की कितनी अहमियत है। मेरे दोस्तों, आप अपने अपने एतबार से देखो, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्ती करो, जो नमाज पढ़ता है उससे दोस्ती करो, जो कुरान की तिलावत करे उससे दोस्ती करो, जो नाते नबी पढ़े उससे दोस्ती करो, जो दुरूद का विर्द करे उससे दोस्ती करो, जो नेकियां करे उससे दोस्ती करो, जो इबादत में हमेशा रहे उससे दोस्ती करो, जिसका ताल्लुक अच्छा हो उससे दोस्ती करो, जो हलाल कमाए उससे दोस्ती करो, जिसका हराम से ताल्लुक उससे दोस्ती ना करो, जो जना के अड्डे में जाए उसके दोस्ती ना करो, जो शराब के नशे में जाए उससे दोस्ती ना करो, जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करे उससे दोस्ती ना करो। याद रखना मुसलमान हो, आज उलमा बार बार तुम्हें कह रहे हैं, उलमा बार बार तुम्हें समझा रहे हैं, मगर एक दिन आप देखेंगे अगर ऐसा कभी मौका आया, अल्लाह ने वो मौका ना दे, कभी कोई मरने वाला तुम्हारे करीब मर जाए और उसका चेहरा बिगड़ जाए, तो याद रखना उसके चेहरे के देखने के बाद तुम भी सोचते रहोगे कि आखिर इतना खूबसूरत चेहरा था बदसूरत कैसे हो गया। इसलिए कि मरने के बाद जितने तुम्हारे आमाल हैं वो सब आया होते जाते हैं, वो सब अब आगे आगे आते हैं। तू किस कलर था, किस क्वालिटी का था, लोग तुझे जानते थे कि तू हरा भरा घूम रहा है, तू हमेशा हसास घूम रहा है, मगर तेरे दिल में क्या है लोग नहीं जानते हैं, तेरे किरदार में क्या है लोग नहीं जानते हैं, तू बंद कमरे में क्या करता लोग नहीं जानते हैं, तू पसे पुष्ट क्या करता लोग नहीं जानते हैं, तू दीवार के पीछे क्या करता लोग नहीं जानते हैं, मगर रब जानता है वो सारी जानकारी। तू घूमता रहा, अल्लाह तुझे छूट देता रहा, तू इधर उधर रहा, अल्लाह तुझे छूट देता रहा। रब मौका दे रहा है, ऐ मेरा बंदा आजा मेरी बारगाह में, आजा तौबा पढ़ ले, हक वाला बन जा, ईमान वाला बन जा, रब से डरने वाला बन जा। तू मुसलमान है, तू मोमिन है, अगर तू डर जाएगा तो तेरा रब तेरे सारी खताओं को माफ फरमा दे। अगर तू डर जाएगा तो सारी खताएं माफ हो जाएगी। इसीलिए कुरान कहता है, मेरा मौजू था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों डरो ऐसे ही रब से जैसा कि डरने का हक है, जैसा कि डरने का हक है। अगर नहीं डरोगे तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे। हजरत इब्राहिम बिन अदम की एक रिवायत मैं आपको बता दूं। हजरत इब्राहिम बिन अदम एक रास्ते से गुजर रहे थे। आज रास्ते में आज जगह जगह में शौचालय बनाए गए हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम रास्ते से गुजर रहे हैं, उन्हें हाजत की जरूरत हुई। वो जैसे ही कज़ा हाजत लगे तो वो शौचालय की तरफ गए, वो सीधे अंदर जाने लगे। किसी ने रोका, यानी गेट कीपर ने रोका। उसने कहा कि ऐ बाबा आप अंदर नहीं जा सकते हैं, पहले पैसा दे तब अंदर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इतने में हजरत इब्राहिम बिन अदम वहीं पर खड़े खड़े रोने लगे, आंखें अश्क बार हो गई। वो गेट कीपर ने कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? पैसा नहीं है, 2 4 5 रुपए के लिए आप रो रहे हैं, इतना रोना क्यों है? अल्लाह अकबर। इतने में हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, मैं तेरे पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया में पेशाब पाखाना करने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आज बंदा मोमिन सोचता है कि फिरी फिरी में जन्नत चला जाएगा, फिरी फिरी में अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा। कोई काम फिरी का नहीं होगा। मुसलमान बने हो तो हर काम के लिए तुम्हें जरूरी है। नमाज पढ़ोगे ये फिरी में नहीं होगा कि तुम बगैर नमाज पढ़े जन्नत चले जाओ, बगैर रोजा रखे जन्नत चले जाओ, बगैर हज करे जन्नत चले जाओ। अल्लाह पकड़ेगा, अगर वो पकड़ लिया तो उसका अदल होगा, अगर वो माफ कर दिया तो उसका रहम होगा, ये उसका करम होगा। इसीलिए जरूरी है ईमान की हिफाजत करो, अकीदा से पुख्ता रखो, अकीदा अच्छा रखो। अगर ईमान तुम्हारा सही है, ईमान में अगर खात्मा है, यकीन जानो कब्र भी कामयाब है, हश्र भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है, हश्र भी कामयाब है। अजल से है सुन्नियों का नारा या रसूल अल्लाह, अजल से है सुन्नियों का नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता, खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ना बेटा बाप का होगा, ना बेटी माँ की होगी, वहां तुम ही
بھی دو گے سہارا یا رسول اللہ، وہاں پہ بھی دو گے سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں رب تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بدعمالی کو اللہ صحیح اعمال میں بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب گنہگاروں کے تمام گناہیں خطاؤں کو معاف فرما۔ آؤ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی خامی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو لفظاً عملاً سہواً قصداً، ان ساری غلطیوں پہ ہم سب مل کے توبہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پلا کھو سلام شمع بز میں، جی سوہانی گھڑی جی سوہانی گھڑی چمکا چاند، روحانی گھڑی چمکتا باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پلا کو سلام مصطفیٰ رحمت پلا کو سلام شمع بز میں، پتلی پتلی گولے پتلی پتلی گولے قدس کی بتیاں، پتلی پتلی قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پلا کھو سلام مصطفیٰ رحمت پلا کھو سلام شمع بز میں، مجھ سے خدمات کے قدسی مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ رحمت پلا کھو سلام شمع بز میں، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ العالم کریم آقار صاحب نواز ہم تمام کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ شرع شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت کے اشعار، علماء کرام کے تقاریر ہم تمام نے سنے ہیں، مولا کرم ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خداوند قدوس ان تمام علماء کرام کے فیضان میں اور ان کے فیوز و برکات میں دراز فرما دے، ان تمام کے فیوز و برکات ہم تمام پر دراز فرما دے۔ مولا
مولا کریم کے فیضان میں برکتیں نازل فرما دے، ان کا فیضان سبوں کے لیے عام و تام فرما دے۔ خداوند قدس اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو سرکار مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام کو سرکار مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں قبول و مقبول فرما لے، ان کا صدقہ سبوں پر جاری و ساری فرما دے۔ خداوند قدوس اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی پیشانی میں سجدے کی طلب عطا فرما دے، دلوں میں تیری بارگاہ میں جھکنے کا شوق و ذوق عطا فرما دے۔ ہم تمام کو مسجد و مدرسہ کی خلوص الہیت کے ساتھ میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اس محلہ کے سفر میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما دے، یہاں کے بوڑھے بچے نوجوانوں کو عشق رسول میں جینا اور اس کے رسول میں مننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم تمام کی زندگی ایمان کے ساتھ میں، ہم تمام کی موت ایمان کے ساتھ میں ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خداوند کو ہم تمام کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما دے، حلال روزی کمانے کی، حلال روزی کھانے کی توفیق دے، اس حلال روزی میں حلال کمائی میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ سبوں کے دکان و مکان میں کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، کاروبار کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ مولا کریم یہاں جتنے لوگ جو مرادیں لے کر آئے ہیں، جو تمنا لے کر آئے ہیں، مولا کریم سرکار مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دفل سبوں کے نیک اور جائز حاجتوں کو ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ مولا کریم جو مسلمان بیمار نصیحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، بالخصوص ایک ننھا منہ سا بچہ شیخ ارحام بیمار ہے، اسے صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام بالخصوص ملک ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرما دے، ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں آپسی محبت و اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم تمام کو نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تو علیم و خبیر ہے، تمام کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام تر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سبوں کی ضرورت و حاجتوں کو پوری فرما دے، سبوں کی پریشانیاں مشکلات کو دور فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الشان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔